आवाज बंद कर दे छोटू, आवाज बंद कर दे। आवाज साइलेंट कर। 26 Dear students, very good morning to all of you. I am Dr. Rohin Parsai, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Humanity Department at Chamalidevi Group of Institutes Indore. I welcome to you for the today lecture on unit number 3, number 56. #21, 53. Yes. Yes, please. Roll number 41. #46. Very good morning today. #49. After 6 minutes, I will start our lecture. Roll number 34. #21, 52. सर 53। हाँ हो गया बेटा। ओके सर। 21, 36. #7, 54. सर 34। हो गया बेटा पहले। सर 34। हो गया बेटा 34 हो गया। मैं अटेंडेंस ले एडमिट कर रहा हूं आपको। 35, 39, 19. हो गया फिर 39। रवीन सोलंकी। इसके बाद रोल नंबर 1। सर 46। रोल नंबर 1 जस्ट मिनट। रोल नंबर 1 के बाद 17, 29 जस्ट मिनट बेटे। 19, 29। यस अब आप बोलिए क्या नंबर बोला था? बोलिए। सर 34। 34 हो गया बेटा तुम्हारा। यस सर। अभी किसने बीच में बोला था? रोल नंबर 1 का सर 46। है 46। 46। देखा तुम्हारा तो मैंने पे दिया ना अटेंडेंस।
ले लिया बेटा तुम्हारा सर 17। 57 17 हाँ सर। और सर 46 है मेरे दोस्त शेखर चौहान का भी, हो गया बेटा। अभी घूमने चले गए बाहर। घूमने नहीं जाना है? हाँ यस सर। सर हो गया ना 17? हाँ, ओके सर, थैंक यू। शिवम चौहान 17। हेलो सर। यहाँ पे ही रहना है तुमको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी स्टार्ट दिस सेशन। सर रोल नंबर 7 हो गया क्या? हो गया 7 बेटे। ठीक है सर। ये कौन है? रोल नंबर 30। सर रोल नंबर 41। 41 तुमको एडमिट किया है मैंने। ऋतिक शर्मा हो गया तुम्हारा। ओके सर। रोल नंबर 31। आवाज नहीं करिए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अभी फिर मैं ओवरऑल सभी को कर दूंगा अटेंडेंस होने के बाद। रोल नंबर 18। (48) शुभम तिवारी। सुमित। अक्सर सुमित तुम बिना रोल नंबर लिखे ज्वाइन करते हो, क्या प्रॉब्लम है तुमको रोल नंबर लिखने में? 29। (42) 34। गौरव चौहान राइट रोल नंबर 15। कर्तव्य सिंह राइट रोल नंबर। खुशी 28। टाइम है बस। Okay, I'm calling attendance. Then I start the session. Roll number 1, roll number 4, roll number 7, roll number 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, हिमांशु का नहीं 39, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57. कौन है? सर 52। ये किसने क्या किया है? सर 52। 52। यस सर। सर 21। 21 हो गया बेटा तुम्हारा। ये इसने सर 31। 31। सर 41। सर 35। इंद्रजीत चौहान। सर 49। क्या है ये क्या कोड डाला है आपने? क्षितिज है, क्या नाम है?
जल्दी जल्दी में क्या है, नाम गलत टाइप किया है। मैं अभी रिजल्ट करूंगा, आलो नहीं करूंगा। सर 35। 35 हो गया पूजा? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? पढ़ाई कर रही हो कि नहीं पूजा? यस सर। सर 49। 49 हो गया बेटे? बोल दिया सर मैंने अभी। 30 सर 30 हो गया तेरा। हो गया। सर रोल नंबर 1 सर भी हो 1 गए, 30 भी हो गए। 2 सर जूनियर रोल नंबर 2 नहीं है क्लास में। आशी गुप्ता, बताओ कहाँ है तुम्हारा रोल नंबर 33? फालतू के अटेंडेंस मत लगाओ। कौन है? Who said this? रोल नंबर 2 नहीं लगेगा जब है ही नहीं क्लास में तो। ओके स्टार्ट। now I am once again I recall to all of you to say about क्या हो रहा है ये। बता रहा हूं अभी तुमको मैं। I am going to discuss the second techniques based on solving initial value problem as the Euler's method. This we have seen in the previous 2 lectures. I have already repeated. Today it is our third lecture based on this chapter number 3. Okay, so now we come to our second technique, which is suggested by or derived by Euler's, one of the famous scientists, Euler, so that it is called Euler method. So Euler's method is such is a very little practical importance, but illustrates in simple form the basic idea of those numerical method which seek to determine the change delta y in y corresponding to in y corresponding to a small increment in the argument x. What is it? So let us consider an initial value problem. So let y equal to gx be the solution of the equation 1, and let x0 x1 equal to x0 plus h, x2 equal to x0 plus 2h be in the equidistant value of x. So in a small interval, a curve is nearly a straight line. So this property used in Euler's method. So then the nth approximation. So when we apply these techniques as the Euler method, so the general formula is for nth approximation for nth iteration is yn plus 1 equal to yn plus h f of xn yn, where n equal to
0 1 2 3 up to infinity. So let me apply this method to solve an example. We see this technique. हेलो सर सर Yes. सर सर पिछली स्लाइड एक बार फिर से बता रहा हूँ सर रिपीट इट स्लाइड बैक स्लाइड ये देखिए, this is the previous slide. It shows to you the general formula derived by Euler's, so that it is called Euler general method for applying n times nth approximation or nth iteration yn plus 1 equal to yn plus h f of x xn of yn. n plus 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास इसके पहले का एक सोल्यूशन आपको इनिशियल मालूम होना चाहिए, जो कि आपको हमेशा दिया होगा प्रॉब्लम में. ये रहा आपका प्रॉब्लम. जैसे हमने मेथड में देखा था, फर्स्ट मेथड थी हमारी टेलर सीरीज मेथड, उसमें भी हमारा ये प्रॉब्लम यही था. तो इसमें भी प्रॉब्लम है, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है. वहाँ हमने सीरीज एक्सपांशन वाली अडॉप्ट की थी. यहाँ पर हम लोग जो टेक्निक्स अडॉप्ट कर रहे हैं वो टेक्निक्स है यूलर्स ने जनरेट की थी, इसलिए इसका नाम यूलर्स मेथड हो गया. इसी का मॉडिफिकेशन भी है जो मैं आपको आज टाइम मिल गया तो मैं आज की क्लास में बताऊंगा, नहीं तो फिर कल की क्लास में बताऊंगा कि हम इस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकालते हैं, जो सोल्यूशन निकालते हैं, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जो y की वैल्यू निकालते हैं वो इतनी एक्यूरेट नहीं आती है, और मैं कई बार इसको रिपीट करना पड़ता है तब जाके हमारा बेटर अप्रोक्सीमेशन आता है. तो इसलिए बेटरमेंट के लिए हमें करेक्शन फार्मूला भी रिक्वायर्ड होता है, तो जो कि यूलर्स ने डिराइव किया है वही हम आपको आज की क्लास में, नहीं तो कल की क्लास में डेफिनेटली बताएंगे आपको हम. अब आ रहे हैं हम इस पर क्वेश्चन करने के लिए. बार बार मुकेश बार मत होइए, हो सकता है आपका कुछ इंटरनल इश्यू हो सकता है. यस यस गौरव बोलिए, गौरव बोलिए, कहिए. ओके सुमित. हाँ गौरव बोलिए बेटे, क्या बोलना चाह रहे हो? गौरव चौहान, मैं रुका हूं. टच हो गया था, कुछ नहीं हुआ. ओके चलिए अब हम इसको प्रॉब्लम करना सीखते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस मेथड से. पिछली क्लासेस में 2 क्लास में हमने टेलर सीरीज को अप्लाई करना सीखा था, जिससे हमने यही प्रॉब्लम को सॉल्व किया था. आज हम ये दूसरी अप्रोच से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर इसका मॉडिफिकेशन वाले से सॉल्व करेंगे. हर बार की तरह यहाँ पर भी हमारे पास एक प्रॉब्लम होगा. हमको इनने y की वैल्यू पूछी है, सॉल्यूशन पूछा है. फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y corresponding to x equal to 1 given that dy by dx equal to x plus y with initial condition. मतलब ये आपके पास इनिशियल वैल्यू दे रखा है, इनिशियल सॉल्यूशन दे रखा है, x0 y0 की वैल्यू आपको दे रखी है. इसको किस तरह से पढ़ते हैं आपको पहले बताया, फिर से एक बार बता रहा हूँ. जो लोग ने क्लासेस अभी बीच में डिसकंटिन्यू की है उन लोगों को समझाने के लिए फिर से समझा रहा हूँ. इसको हम कैसे रीड करते हैं, y ऑफ x0 बराबर y0, बिकॉज डेरिवेटिव में न्यूमरेटर वाला वेरिएबल जो है, यदि इस तरह से डेरिवेटिव शो किया गया है, रिप्रेजेंटेड है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर वाला वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और डिनोमिनेटर वाला वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही करते हैं, और आपको क्वेश्चन में भी एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, y की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब y डिपेंडेंट है, और x की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है. जो वैल्यू दी होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसकी वैल्यू पूछता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो इसको देखते हुए हमें इस प्रॉब्लम में y को डिपेंडेंट लेके x के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है. आते हैं अब हम सबसे पहले स्टेप में. हमने पहले प्रॉब्लम का एनालिसिस किया, जो भी वैल्यूज हमें दी हुई है उसको हमने लिख ली. गिवन दैट dy by dx equal to x plus y, y of 0 equal to 1. Now we have the Euler's method, the nth approximation formula. nth approximation क्या मेथड क्या बोलता है, yn plus 1 बराबर yn plus h f of xn by n. जब पहली बार सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या गौरव रखेंगे, वैल्यू 0 रखेंगे. जब तुम दूसरी बार इसको करेक्ट करोगे तो उसकी वैल्यू के लिए आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखते जाएंगे, जब तक कि
आपके डिजायर एक्यूरेसी के आंसर सेम नहीं आते, दो इक्वल आंसर नहीं आते डेसिमल प्लेस तक एज पर रिक्वायरमेंट, तब तक हम इसको रिपीट करते रहेंगे। आ रहे हम लोग, अब हम यहाँ पर n बराबर 10 लेंगे, तो हमारे पास we have h equal to 0 1 which sufficiently small than the, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस हमें लेना है तो हम 0.1 का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि हमें 1 तक जाना है, 1 तक जाना है, इसका मतलब हमने जो कॉमन डिफरेंस लिया वो 0.1 लिया है। आप चाहें तो 0.2 भी ले सकते हो, तो 0.2 जब लोगे तो आपको नंबर ऑफ n की वैल्यू स्मॉल और कम हो जाएगी, ठीक है, उतने इटरेशन कम होना होंगे। आप देख सकते हो, सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी नहीं है, तो चॉइस इज आवर, ये चॉइस हमारी होती है विच इज सफिशिएंटली स्मॉल। तो आप 0.25 लोगे तो और ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज लेना पड़ेगी, n की वैल्यू और ज्यादा लेना पड़ेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0.1 कॉमन डिफरेंस लिया है। आप 0.2 लेके भी क्वेश्चन कर सकते हो, आप 0.25 लेके भी कर सकते हो, 0.75 भी ले सकते हो। यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस दिया नहीं है तो चॉइस अपनाने ऊपर है, ठीक है। तो इस बात पर कई लोगों के दिमाग में, माइंड में ये आ सकता है कि सर ये n बराबर 10 कैसे हुआ, ठीक है। तो 0.1 0.2 0.3 ऐसा आप कॉमन डिफरेंस x की वैल्यू में जोड़ते जाएंगे, और कहां तक जाना है, हमें 1 तक जाना है, क्योंकि 1 पे वैल्यू निकालना है y की हमें। तो the various calculations are arranged as follows by equation number 1 by the formula number 1। अब आप एक एक करके वैल्यूज को टेबुलर फॉर्म में देखते जाइएगा। आप इस क्वेश्चन को टेबल्स में भी लिख के फॉर्म में समझ सकते हैं। आप ऐसे एक एक करके भी कर सकते हैं कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक बार पहले इटरेशन के लिए हमने n की वैल्यू 0 रखी थी, फॉर x के लिए 0.0 और y की वैल्यू इनिशियल आपके पास 1.0 दे रखी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यू रिक्वायर होती है उस फॉर्मूले में जो आपका फॉर्मूला है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 1.0 रख दिया है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए पिछली स्लाइड पे जाऊंगा। ये रहा आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, एक्स प्लस वाई दे रखी है, एक्स प्लस वाई आपको दे रखी है। आपको पहले फर्स्ट वैल्यू निकालना है, तो आपके पास x 0 y 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ x 0 y 0 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी, जो टेबल में मैंने आपके सामने कैलकुलेट करके रखी है, वो है 1.10, जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। ऐसे आप x की जगह 0.0 और y की जगह 1.0 इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए, इससे भी आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। राइट गौरव, एक इटरेशन समझ लीजिए, एक बार ये मेथड लगाना सीख लीजिए, फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू के लिए, सक्सेसिव वैल्यू के लिए हमें रिपीट करते जाना है। जब तक हमारे पास x की वैल्यू 1 नहीं आती, तब तक उतनी बार हमें इस मेथड को रिपीट करते रहना है, ठीक है, राइट। तो आइए सभी लोग, हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन में स्टार्ट किया है और फिर यह वैल्यू हमने हमारे इस फॉर्मूले में रख दी है। तो जब आप n बराबर उसमें 0 रखोगे तो आप उसमें y1 की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड होगी, तो इनिशियल जो वैल्यू है 1.0 प्लस 0.1 और dy बाई dx मतलब एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू की जगह आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास y की न्यू वैल्यू मिल जाएगी, y की आपके पास न्यू वैल्यू शो होने लगेगी। क्या बोल रहे बेटे, स्लाइड बताना देना। ओके, मैं आपके सामने देखिए, आप पहली लाइन को फिर से समझिए, पहली बार मेथड को लगाना फिर से समझिए, तो आप फिर इसी तरह से दूसरी बार इस मेथड को अप्लाई करने लगेंगे। तो हम आ रहे हैं पिछले स्लाइड की तरफ। देखिए मुकाती, देखिए
ये रहा आपके पास जनरल फार्मूला, इसी को मैंने टेबल में भी लिख रखा है। yn का मतलब है प्रीवियस वैल्यू मतलब ओल्ड वैल्यू, ओके। एज का मतलब है कॉमन डिफरेंस, और एफ ऑफ एक्स एन वाई एन मतलब आपके पास जो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई डिफाइन है, इसमें एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो रखना है और वाई की जगह वाई की वैल्यू रखना है। जैसे अपन ने पहली बार जब इस मेथड को अप्लाई किया है तो एन की वैल्यू 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो आपके पास y1 आएगा, यहाँ पर आएगा y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 y0। अब इसको देखते हुए अब आप ये टेबल में बात को समझिए। ये रख दिया हमने, इस फॉर्मूले में रख दिया है, फॉर्मूले को भी यहाँ पर हमने लिख दिया है, वर्ड्स में समझा दिया है कि y का y0 मतलब पहली वाली वैल्यू। जब अपन नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे तो इसके प्रीसीडिंग वैल्यू आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे y की जगह, तो आपके पास h चूंकि कॉमन डिफरेंस 0.1 है तो आपका x1 हो गया 0.1 और y जो हो गया y1 हो गया x1 0.1 है, तो y1 आपका 1.10 है जो कि आपने पिछले इटरेशन में कैलकुलेट किया है। तो जो भी पहले वाली वैल्यू आएगी वो अपडेट होने के लिए नेक्स्ट रिपीट होगी, सेकंड टाइम में रिपीट होगी, राइट। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन या इटरेटिव मेथड बोलते हैं। तो ये आपने स्टार्ट किया, फिर से इसके बाद जो नेक्स्ट जो भी आंसर आया उसको अपडेट करने के लिए इस फॉर्मूले को दोबारा अप्लाई किया। ये रहा हमारा फॉर्मूला जो आपने आपको पहले वाले स्लाइड में बता रखा और यहाँ पर टेबल में लास्ट कॉलम में शो कर रखा है और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। तो देखते जाइए बेटे आप लोग, y की वैल्यू y1, x की x1 की वैल्यू 0.1 है, y1 की वैल्यू 1.10 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले हमें f ऑफ xy की वैल्यू निकालना होगी जो कि इस फॉर्मूले में मतलब dy बाई dx की वैल्यू निकालना पड़ेगी। ये रहा dy बाई dx मतलब f ऑफ xy। तो यहाँ पर आप x की जगह रखेंगे 0.1 और y की जगह आप रखेंगे 1.10। बताइए दोनों का जोड़ेंगे तो क्या आएगा गौरव, क्या आएगा बेटे? ये रहा आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है dy बाई dx। पिछले स्लाइड पे आप जाने की जरूरत नहीं है आपको। x प्लस वाई, तो x की जगह आपको x1 रखना है, x1 मतलब 0.1 रखना है, और y की जगह y1 रखना है, 1.10 रखना है। तो गौरव इंद्रजीत चौहान क्या मिलेगा तुमको? 1.20 मिलेगा, राइट। कोशक अब इस वैल्यू को यहाँ पर यूज करना है, जो आपका यूलर्स का फॉर्मूला है उसमें यूज करना है। तो इसके पहले वाली जो आपकी y की ओल्ड वैल्यू थी वो आपकी यहाँ पर लिखी है 1.10 आपने कैलकुलेट किया है। ये तो एस तो कॉमन डिफरेंस है जो हर बार कॉमन होगा, ऐसा हमें रिपीट करते जाना है जब तक x की वैल्यू 1 नहीं आ जाती। ये जो कॉमन डिफरेंस है 0.1 वो जोड़ते जाना है, x में जोड़ते जाना है और उतनी बार हमें ये मेथड को रिपीट करना है। तो जरा काउंट करो कितनी बार इसको हमने रिपीट किया इस मेथड को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार हमें रिपीट करना पड़ा जब हम जाके हम अपने आंसर को कंक्लूड कर पाए। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3.598। सो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में डिजायर एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि x बराबर 1 पे निकाला है, मतलब जब तक x की वैल्यू 1.0 नहीं आ जाती मतलब 1 नहीं आती उतनी बार हमें रिपीट करना है इस मेथड को। आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन राइज किया है, जरा मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, म्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने आपके सामने ये पूरा प्रोसीजर एग्जांपल से समझा दिया है। अब हम इसके बाद इसका मॉडिफिकेशन वाला मेथड की स्लाइड में शेयर करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा आप सभी के सामने। क्योंकि ये मेथड में टाइम लगता है इसलिए हमने इस आंसर को करेक्ट करने के लिए करेक्टर फार्मूला बनाया है यूलर ने, जिसको यूलर्स का करेक्टर मेथड या मॉडिफाइड मेथड कहते हैं। आप ऐसे एक एक स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं कॉपी में लिख के कि पहले स्टेप 1 में ये हो गया, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, 8, 9, 10, 11। लेकिन उसमें आपको काफी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए टेबुलर फॉर्म इस मेथड में मैंने अडॉप्ट किया है, जो कि आप लोग भी टेबुलर फॉर्म अडॉप्ट करेंगे। पहले फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड रो को करेंगे, फिर थर्ड को करेंगे, क्योंकि जब तक आप पहले वाली रो कंप्लीट नहीं करेंगे आप दूसरी रो पे जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो मॉडिफिकेशन है वो सेकंड स्टेप में होता है। पहले आपको इसकी जो वैल्यू इनिशियल आ रही है पहले वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगी। Yes, guys. Anybody or any
कंडेंशन, गौरव चौहान, अर्पित वर्मा, श्रेयांश। अभी हमारे पास और टाइम है 7-8 मिनट का, जिसमें हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में कुछ बातें सीख सकते हैं, फॉर्मूले को दिमाग में रिकॉल कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में आपको नेक्स्ट क्लास में बताना ही है, कल की क्लास में आपको समझाना है। देख लीजिए, किसी को भी कोई भी स्टेप में कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो मैं आगे बढ़ू। श्रेयांश, गौरव चौहान, अर्पित वर्मा। सर बोलिए बेटे। सर ये डाउट है कि सर अब मतलब आपको 1 तक लेके आनी तो x की वैल्यू 1 लानी पड़ेगी। हाँ देखो क्या है, आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर जो y की वैल्यू पूछ रहा है वो कहां पर पूछ रहा है, 1 पे पूछ रहा है। तो जब तक 1 नहीं आता तब तक हम लोग उसको उतनी बार इस मेथड को रिपीट करेंगे। ठीक है, मतलब ये लिमिट दिए, डिजायर एक्यूरेसी की वैल्यू दे रखी है आपको कि जब तक x की वैल्यू 1 नहीं हो जाती तब तक हमें उतनी बार इस मेथड को रिपीट करना पड़ेगा। अब देखिए जनाब बेटे, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन में दिया नहीं था तो आपने अपनी चॉइस से 0.1 ले लिया था, एच की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस 0.1 ले लिया था। आप चाहो तो 0.2 लेके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.2 जब लोगे तो पहला हो जाएगा 0.0, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। तो आपको यहाँ पर जैसे आपने कितनी बार रिपीट किया है मेथड को, 11 बार किया है, तो उसकी जगह 5 बार ही रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चॉइस इज योर्स। एग्जामिनर आपको बाउंड नहीं कर रहा है कि आपको कितने इटरेशन करना है। यदि एग्जामिनर आपको बाउंड करे कि नहीं सर हमें 10 इटरेशन ही करना है तो फिर 10 ही करना पड़ेगा। 8 का बोलेगा तो उसके हिसाब से कॉमन डिफरेंस हमें लेना होगा। बिल्कुल आंसर आएगा बेटे, उसको भी एक्सेप्ट करेगा एग्जामिनर, राइट। तो मैंने आपके सामने जो आंसर बताया है वो 0.1 को लेके कॉमन डिफरेंस 0.1 लेके बताया है। आप 0.2 लेके कर सकते हो, पर कोशिश करना 0.2 से कम मत लेना ज्यादा, क्योंकि फिर इटरेशंस आपके, यदि आप जितनी ज्यादा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू लोगे उतने नंबर ऑफ इटरेशन कम होंगे और वो आंसर उतना लेस करेक्ट आएगा। तो इसलिए हमें नंबर ऑफ इटरेशन इसमें बढ़ाना होंगे। तो कम से कम 5 कर सकते हो, अधिक से अधिक 10 ले सकते हो। ठीक है, 0.2 ले सकते हो। वैसे इतना टाइम एग्जामिनर देता है कि आप कर सको। ठीक है, और कोई किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को लेके, कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन है? अभी आप आज इस पर प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे। जो से भी टाइप का आपको लेना है क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए। और कोई डाउट है तो और मुझसे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, कॉल करके भी कोई कंफ्यूजन आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे गौरव चौहान अक्सर मुझे कॉल कर लेता है फोन पे, और नहीं तो व्हाट्सएप पे पूछ लेता है। ऐसे आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका आरजीपीवी की राजू वानी के कैलेंडर में एमएसटी का जो डेट है वो नेक्स्ट मंथ दिया रखा है, 12 तारीख दे रखी है। तो इसलिए उसके आसपास ही आपका एमएससी 1 होगा, इसलिए अपना रेगुलर बेसिस पे तैयारी शुरू कर दीजिए। चैप्टर का हम लोग एक हफ्ते पहले क्लियर कर देंगे कि कितने चैप्टर पूछे जाएंगे। जो भी कॉमन गाइडलाइंस आएगी डिपार्टमेंट से वो आपको हम शेयर कर देंगे। अभी आपका काम है कि आप जितना सिलेबस कवर हो रहा है उतना कवर करते जाएं, रेगुलर बेसिस पे करें, आगे बढ़े। दूसरी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें अगली स्लाइड में मैंने कंक्लूजन किया है। Thus, the required approximate value is y equal to 3.598. Thank you very much. अब हम आ रहे हैं दूसरी स्लाइड को शेयर कर रहे हैं बचे हुए टाइम में, जो हम कल आपको इस पर क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट मेथड का नाम आएगा यूलर्स का मॉडिफाइड मेथड। मॉडिफाइड मेथड का मतलब है जो हम लोग एक बार अभी पिछले मेथड में सोल्यूशन निकाला है, इसको करेक्ट करने का भी एक फार्मूला है, एक करेक्शन का भी फार्मूला यूलर्स ने दिया है, इसलिए इस मेथड का नाम करेक्शन फार्मूला हो गया।
तो जिससे वैल्यू निकालते हैं उसको प्रिडिक्टर फॉर्मूला बोलेंगे, और जिससे अपन उस आंसर को करेक्ट करेंगे उसको करेक्टर बोलेंगे। यदि एग्जामिनर बोलेगा तभी आपको ये मेथड लगाना है कि सॉल्व बाय यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। यदि नहीं बोलता है और सिंपली यूलर्स का नाम बोलता है कि यूलर्स मेथड लगाना है, तो इसका मतलब आपको जो अभी बताई उसी को यूज करना है, उसी को अप्लाई करना है आपको। हर बार की तरह है, वही बोलूंगा, अपना इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आप सभी को। हमारा प्रॉब्लम वही है, क्या है प्रॉब्लम? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब जब कोई एक इक्वेशन एक बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड होती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है, तब इसका मतलब जब एक कंडीशन के लिए कोई प्रॉब्लम इन्वॉल्व होता है, किसी एक कंडीशन के अंतर्गत की कोई वैल्यू हमें निकालना होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालना होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में, उसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। लेट y equal to gx be the solution of equation 1। कोई एक सोल्यूशन एज्यूम करके चलते हैं, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर भी हमें लेना होता है। हमें अपनी चॉइस से डिसाइड कर सकते हैं जब एग्जामिनर नहीं दे, और जब एग्जामिनर देगा तब उसकी चॉइस से ही आपको इसमें डिसाइड करना है। तो इसमें सबसे पहली स्टेप में हमने अभी जो आज की जो क्लास में फार्मूला प्रिडिक्शन का सीखा है, वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। yn प्लस 1 बराबर yn इक्वल टू एच ऑफ एफ ऑफ एक्स इन वाई एन। पहले वाला फार्मूला तो याद रखना ही है। अब इसके साथ में इस आंसर को करेक्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यूलर्स ने अपने स्टेप में मॉडिफाई किया है, और इस फॉर्मूले को उसने 8 बार रिपीट किया है, क्योंकि इस फॉर्मूले को एक बार रिपीट करने से इतना एक्यूरेट आंसर नहीं आता है। इसको हमें बार बार रिपीट करना होता है। उतनी बार हम रिपीट करेंगे जब तक कि 2 सेम आंसर नहीं आ जाते। तो जब आपको 2 अप्रोक्सीमेशन में, आर का मतलब है इटरेशन, कितनी बार आप रिपीट करेंगे। तो जब पहली बार करेंगे तो आर की वैल्यू 1 यूज करेंगे, और जब दूसरी बार अप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू 2 यूज करेंगे, जब तक कि वही मैंने आपके सामने यहाँ पर डिक्टेट कर दिया है, लिख दिया है कि वेयर आर डिनोट्स द नंबर ऑफ इटरेशन। इसका मतलब इस फॉर्मूले को यदि आपने 8 बार रिपीट किया है तब उसका क्या फॉर्म होगा वही आपके सामने लिखा हुआ है। r-1 इसलिए यूज किया है क्योंकि इसके पहले वाला जो आप फर्स्ट टाइम वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से, उसको आप लोग इस फॉर्मूले से मॉडिफाई करेंगे, और उतनी बार ही मॉडिफाई करेंगे जब तक कि 2 सेम आंसर yn प्लस 1 के नहीं आ जाते। तो पहले बार अप्लाई करने के लिए 1 रखेंगे, दूसरी बार अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर पहली बार अप्लाई करने के लिए 1 रखेंगे इस फॉर्मूले को, और दूसरी बार रिपीट जब करेंगे तो उसके लिए 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। am I right? देखते हैं इस प्रॉब्लम को इस मेथड से हम सॉल्व करके देखेंगे। इसी के बारे में लिखा हुआ है, दिस मॉडिफाइड मेथड इज ए प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड because in each step we first predict a value by 2 and then correct it by 3। वही जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था उसको स्लाइड में लिख के बताया आपको मैंने। जैसे ये हमारे सामने इस तरह का एक एग्जांपल होगा, इस तरह का कोई भी एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है। गौर करिए, ध्यान दीजिए, कुछ बातें आज सीख लीजिए, बाकी मैं कल आपके सामने फिर से ये बात को रिपीट करूंगा ही सही। इस तरह के कोई भी एक प्रॉब्लम दिया होगा जिसके साथ ये एक बाउंड्री कंडीशन दी होगी। अब इसमें एक बात आपको एडिशनल दे रखी है, इस प्रॉब्लम में आपको स्टेप दे रखी है 0.2। स्टेप्स का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो आपको चूंकि स्टार्टिंग वैल्यू 0 लेना है क्योंकि ये आपके पास इनिशियल कंडीशन दे रखी है। ये आपके पास इनिशियल कंडीशन हमेशा दी रहती होती है, इस तरह की हमेशा कंडीशन दी होगी। तो x0 मतलब स्टार्टिंग वैल्यू जो आपको x की दे रखी है वो 0, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपके पास 1 दे रखी है, राइट। और आपको ये यूलर की मॉडिफाइड मेथड किन किन वैल्यू के लिए अप्लाई करना है, पहले आपको 0.2 पे निकालना है, फिर 0.4 पे निकालना है, और फिर 0.6 पे निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन में इस मेथड को आपको 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार रिपीट करना होगा, 3 बार अप्लाई करना होगा, तभी आपके पास
क्वेश्चन में एग्जामिनर आपके सामने 3 सॉल्यूशन पूछ रहा है, 3 सॉल्यूशन पूछ रहा है। 3 कैसे बोला मैंने, 0 से लेके 0.6 तक मैक्सिमम लिमिट x की 0.6 है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम लिमिट 1 थी, राइट? तो यहाँ पर आपके पास x की मैक्सिमम लिमिट 0.6 है, तो आप डायरेक्ट 0.6 पर जंप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसके पहले की वैल्यू आपको मालूम करना पड़ेगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले 0 पे तो आपको वैल्यू मालूम है, आप स्टार्ट करेंगे h की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 0.2 लेंगे, 0.2 लेके आप इसमें x की वैल्यू में जोड़ते जाएंगे और उसने करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यूज निकालते जाएंगे।